میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا۔ سواگت ہے دوستو آپ کا یار مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، پترکار سلمان علی کے گھر پچھلے ورش چلا تھا بلڈوزر، کل کر دی گولی مار کر ہتھیا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں، الہ آباد کی پاون زمین سے یارو، الہ آباد کی پاون زمین سے یارو، میں اپنے ساتھ میں سنگم اٹھا کے لایا ہوں، میں اپنے ساتھ میں سنگم اٹھا کے لایا ہوں۔ اور آ رہا تھا تو مجھے یہ میرے من میں ایک یقین تھا کہ مجھے بہت پیار دیں گے وہاں کے لوگ، بہت اچھے سے سنیں گے۔ اور وہ یقین کیوں تھا؟ چار مصرے رکھتا ہوں پھر آپ کے کورس تک آتا ہوں، لیکن پہلے وہ چار مصرے رکھ دوں جن سے میرا من جڑا ہوا ہے، جن سے میری بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں۔ سنیے گا دوستوں کہ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، اس پہ اتنا پیار دے دیں کہ گیت پڑھنے کے لائق میرا موڈ بن جائے۔ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہوا لے کے چلا ہوں، اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یارو میں دوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یارو میں دوا لے کے چلا ہوں، اور مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، رہوں گا میں کامیاب، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ اور ایک بہت چھوٹی سی بات کہنے کا میرا من ہے۔ آج ہمارے دیش میں تمام طرح کی بری باتیں آ چکی ہیں، ہم بٹ گئے ہیں، لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جب تک شیونی جیسے شہر میں اس طرح کے منچوں سے ڈھیر سارے ہندو مسلمان سکھ مل کر کے اس طرح کے پروگرام کریں گے، اور وہاں پر کمار برجیندر جیسے، بٹوہی جی جیسے اور عمران جیسے لوگ آتے رہیں گے، اس دیش کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا وشواس ہے۔ آپ لوگوں نے محبت کی ایک بہت اچھی سی فضا بنائی ہے۔ چار مصرے میں رکھتا ہوں، میں بھی پیار کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے اتر پردیش میں کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں، بہت چھوٹا سا درد کہنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر آپ کے کورس تک آؤں گا۔ ہم پہ ایک الزام بہت صدیوں سے لگتا چلا آ رہا ہے کہ ہم محبت نہیں پھیلاتے، ہم امن کی بات نہیں کرتے، ہم کہیں نہ کہیں سے کٹر پنتھی ہیں۔ ایک بات پچھلے دنوں ہمارے صوبے کے مکھیا جو آج کل ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ چار مصرے رکھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ محبت کی چھوٹی سی بات میں نے نکالی ہے تو آپ کا پیار ملے، پھر گیت تک آتا ہوں۔ چار مصرے رکھتا ہوں، سنیے گا دوستوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے۔ آشوتوش بھائی، دنیش بھائی، آپ سب کا پیار ملے مجھے، بہت ایک ٹیس ہے میرے من میں جسے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन चीजें नमाज में मकरूह और मना है उनका बयान। मसला मकरूह वो चीजें हैं जिनसे नमाज नहीं टूटती लेकिन सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है। अपने कपड़े या बदन या जेवर से खेलना, कंकड़ियों को हटाना मकरूह है। अलबत्ता अगर कंकड़ियों की वजह से सजदा न कर सके तो 1-2 मरतबा हाथ से बराबर करना और हटाना दुरुस्त है। नमाज में उंगलियां चटखाना और कोले पर हाथ रखना और दाएं बाएं मुंह मोड़ के देखना ये सब मकरूह है। नमाज में दोनों पैर खड़े रखकर बैठना या 4 जानों बैठना या कुत्ते की तरह बैठना ये सब मकरूह है। हाँ, दुख बीमारी की वजह से जिस तरह बैठ सके बैठे, इस वक्त कुछ मकरूह नहीं। सलाम के जवाब में हाथ उठाना और सलाम का जवाब देना हाथ से देना मकरूह है। जबान से जवाब दिया तो नमाज टूट गई। नमाज में इधर उधर देखने से कपड़े को समेटना और संभालना कि मिट्टी से न भर जाए मकरूह है। जिस जगह ये डर हो कि अगर कोई नमाज में हंसा देगा या ख्याल भट जाएगा और नमाज में भूल चूक हो जाएगी तो ऐसी जगह नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर कोई आगे बैठा बातें कर रहा हो या किसी और काम में लगा हो तो उसको पीछे की तरफ बैठकर मुंह करके नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। लेकिन अगर बैठने वाले को इससे तकलीफ़ हो और वो इसके रुक जाने से घबराए तो ऐसी हालत में नमाज के पीछे नमाज न पढ़े या वो इतने ज़ोर से बातें करता हो कि नमाज में भूल जाने का डर हो तो वहाँ नमाज न पढ़ना चाहिए। मकरूह है अगर किसी के मुंह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मकरूह है। मसला अगर नमाजी के सामने कुरान शरीफ या तलवार लटकी हो तो उसका कोई हर्ज नहीं है। जिस फर्श पर तस्वीरें बनी हो इस पर नमाज हो जाती है, लेकिन तस्वीर पर सजदा न करे तो तस्वीरदार जा नमाज रखना मकरूह है। और अगर तस्वीर घर में रखा तो बड़ा गुनाह है। अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत पर या छत गिरी में तस्वीर बनी हुई हो या आगे की तरफ को या दाएं बाएं तरफ या बाएं तरफ हो तो नमाज मकरूह है। और अगर पैर के नीचे हो तो नमाज मकरूह नहीं। लेकिन अगर बहुत छोटी तस्वीर हो कि अगर ज़मीन पर रख दे तो खड़े होकर ना दिखाई दे या पूरी तस्वीर ना हो बल्कि सर कटा हुआ हो या मिटा हुआ हो तो उसका कुछ हर्ज नहीं है। ऐसी सूरत से किसी सूरत में नमाज मकरूह नहीं होती चाहे जिस तरह हो। तस्वीर दार कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। दरख्त या मकान वगैरह किसी बेजान चीज़ का नक्शा बनाया हुआ हो मकरूह नहीं। नमाज के अंदर आयतों का या किसी और चीज़ का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। अलबत्ता अगर उंगलियों को दबाकर गिनती या रखे तो कुछ हर्ज नहीं। दूसरी रकात को पहली रकात से ज़्यादा लंबी करना मकरूह है। किसी नमाज में किसी सूरत मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ता करे और सूरत कभी न पढ़े, यह बात मकरूह है। कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत बुरे और मैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है और अगर दूसरे कपड़े ना हो तो जायज़ है। पैसा कौड़ी में लेकर नमाज पढ़ना मकरूह है। और अगर ऐसी चीज़ हो कि नमाज में कुरान शरीफ वगैरह नहीं पढ़ सकता हो तो नमाज नहीं होती, टूट जाएगी। जिस वक्त पेशाब पाखाना ज़ोर से लगा हो ऐसी वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। जब बहुत भूख लगे तो खाना तैयार हो तो पहले खाना खा ले तब नमाज पढ़े। बे खाना खाए नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त तंग होने लगे तो पहले नमाज पढ़ ले। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं, लेकिन अगर आंखें बंद करने से नमाज में खूब दिल लगे तो बंद करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं हो। बेज़रूरत नमाज में थूकना और नाक साफ़ करना मकरूह है और अगर ज़रूर पड़े तो दुरुस्त है। जैसे किसी को खांसी आई और मुंह में बलगम आ गया तो अपने बाएं तरफ थूक दे या कपड़े में लेकर मल डाले और दाहिनी तरफ और क़िबला की तरफ न थूके। नमाज में खटमल के काट या खाए तो उसको पकड़कर छोड़ दे। नमाज पढ़ने में मारना अच्छा नहीं है। और अगर खटमल ने अभी काटा नहीं है तो उसको न पकड़े, बेकाटे पकड़ना भी मकरूह है। अभी सूरत पूरी ख़त्म नहीं हुई, एक गले रह गए तो जल्दी के मारे रुकू में चला गया और सूरत को रुकू में जाकर ख़त्म कर लिया तो नमाज मकरूह हुई। अगर सजदे की जगह पैर। और इमरान प्रताप गढ़ी से जो ये खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.